السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کمپنی لا کا پہلا یونٹ، اور جس میں جو ہے پہلا ٹاپک ہے کمپنی کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ شیئر اسکرین کے ذریعے سے میں جو ہے اپنا ٹاپک بتاؤں گا۔ تو یہ جو میرا ٹاپک ہے کمپنی کے بارے میں، مشترکہ سرمایہ کمپنی یا جوائنٹ اسٹاک کمپنی، یا پھر جو ہے کمپنی کے بارے میں، کمپنی کی تعریف، کمپنی کے بارے میں اس کے خصوصیات، اس کی کمپنیوں کی مختلف کمپنیوں کی درجہ بندی، اور اس کے بعد جو ہے خانگی کمپنی اور عام کمپنی کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو ہے کمپنی کی تعریف، اور اس کے بعد کمپنی کے معنی اور تعریف کے بارے میں جو ہے ہم سب سے پہلے کمپنی کا تعارف سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے کمپنی کا تعارف، تنہا ملکتی کاروبار اور ہندو مشترکہ خاندان کاروبار اور شراکت داری فرم وغیرہ کاروباری تنظیمیں اپنی خامیوں جیسے محدود وسائل، لامحدود واجبات اور تسلسل وغیرہ کی وجہ سے جدید صنعت اور کامرس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایک ایسی کاروباری تنظیم کی ضرورت محسوس کی گئی جو اوپر بیان کیے گئے خامیوں، جیسا کہ محدود وسائل، لامحدود واجبات جیسے خامیوں سے پاک ہو، اور اس طرح مشترکہ سرمایہ کمپنی کا وجود عمل میں آیا، کیونکہ یہ لامحدود واجبات کے جوخم کے ساتھ کثیر وسائل اکٹھا کر سکتے ہیں۔ واجبات جو ہے لامحدود ہے، یعنی ان کے جوخم کو کم کر رہے ہیں، اور کثیر جو ہے وسائل کو اکٹھا کرنا، کثیر جو ہے سرمایہ کو اکٹھا کرنا، کثیر سرمایہ کو مشغول کر سکتی ہے، جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتی ہے، یعنی اختصاص کو متعارف کروا سکتی ہے، اور پیشہ وارانہ مہارت کے ساتھ چل سکتی ہے۔ تو یہ اس کا تعارف ہوا۔ تعارف میں یہ بات بتائی گئی کہ کس طریقے سے جو ہے کمپنی کا آغاز ہوا۔ کمپنی کا آغاز ہونے کے جو ہے اہم وجوہات میں سب سے بڑی وجہ جو ہے محدود وسائل، محدود سرمایہ، اور لامحدود یعنی کہ جو ہے انلمیٹڈ جو ہے لائبلٹیز، اور ان کا جو ہے کنٹینیویشن جو ہے پرابلم رہا تھا، اور جو ہے کاروبار کسی وجہ، جیسا کہ تنہا ملکیت کا کاروبار، اگر کوئی شخص جو ہے تنہا ملکیت کا کاروبار کرتا ہے اور کسی وجہ سے جو ہے اس کا کاروبار وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، یا ہندو مشترکہ خاندان میں سرمایہ کم ہوتا ہے، یا شراکت داری فرم میں جو ہے محدود وسائل ہوتے، لامحدود ذمہ داریاں ہوتے، اور یہاں پر جو ہے تسلسل کی کمی ہوتی، اور ایک دوسرے میں جو ہے بھروسہ اور جو ہے یہاں پر کا فقدان ہوتا۔ تو بہرحال جو ہے اس کی یہ وجہ سے جو ہے یہاں پر مشترکہ سرمایہ کمپنی یا جو ہے کمپنی کا وجود عمل میں ہے۔ اصل میں جو ہے یہاں پر کمپنی کے لفظی معنی جو ہے ساتھ دینا، یا ساتھ جو ہے مل کر کام کرنا۔ کمپنی کے لفظی معنی ساتھ دینا یا ساتھ مل کر کام کرنا۔ تو یہاں پر کمپنی کی تعریف دیکھیں گے ہم۔ کمپنی کی تعریف جو ہے کمپنی کس طریقے سے کام کرے گی، کمپنی جو ہے کیا ہے، وہ جو ہے یہاں پر بتلایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے کمپنی کے معنی اور اس کی تعریف۔ مشترکہ سرمایہ کمپنی یا عام الفاظ میں کمپنی کی رضاکارانہ انجمن ہوتی ہے۔ مطلب کہ کمپنی جو ہے ایک رضاکارانہ انجمن ہے، یعنی کچھ لوگوں، کچھ افراد، کچھ جو ہے لوگوں کا ایک مجموعہ ہے، انجمن، جو بڑی کاروباری سرگرمی کو انجام دینے کے لیے قائم کی گئی۔ مطلب کہ بڑی جو ہے کاروباری سرگرمی، بڑا جو ہے زیادہ کاروباری جو ہے سرگرمی کو انجام دینے کے لیے جو ہے اس کو قائم کیا گیا۔ یہ ایک مصنوعی وجود ہوتا ہے جس کا قانون کے ذریعے قائم عمل میں آتا ہے، اور اس کی تحلیل بھی قانون کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ مطلب کہ یہ جو کمپنی ہے ایسے ہی جو ہے قائم نہیں ہوتی، جیسا کہ جو ہے عام کاروبار قائم ہوتے۔ کسی کو بھی جو ہے کاروبار قائم کرنے کے لیے ایسے ہی جو ہے کاروبار قائم کیا جا سکتا، کوئی بھی جو ہے کاروبار کو جو ہے قائم کر لے سکتے، لیکن یہاں پر جو ہے کاروبار قائم کرنے کے لیے
कारोबार को कायम करने के लिए जो है ऐसे ही जो है कारोबार कायम नहीं किया जा सकता, बल्कि जो है कारोबार कायम करने के लिए जरूरी है कि जो है कानून का क़याम अमल में लाए, यानी कानूनन जो है इसको क़याम अमल में आया जाता, जो है कानून की मदद से जो है क़याम अमल में लाया जाता। और जब इसको बंद करना होता, कारोबार को ख़त्म करना होता, तहलील करना होता, उस वक्त भी जो है कारोबार कानून के ज़रिए से ही ख़त्म किया जा सकता है। अब कंपनी एक अलहदा वजूद रखती है, यही वजह है कि इसका कोई रुकन फौत भी हो जाए तब भी कारोबार का वजूद बाकी रहता है। इसके अराकीन एक मुश्तरका मकसद के लिए रकम मजबूर करते हैं, मतलब कि कारोबार का एक अलहदा वजूद होता, और इसकी वजह से अगर इसमें से कोई अगर रुकन फौत भी हो जाए तब भी जो है कारोबार कंटिन्यू किया जा सकता, कारोबार जो है कंटिन्यू रहता, कारोबार का वजूद खत्म नहीं होता, बल्कि जो है कारोबार जो है कंटिन्यू किया जाता और मुश्तरका जो है अराकीन मिलकर जो है इसमें रकम मजबूर करते हैं। आगे कंपनी का सरमाया इसी मशगूल शुदा रकम पर मुश्तमिल होता है। कंपनी के सरमाए को छोटी इकाइयों में तकसीम किया जाता है, जिनको हिस्स यानी शेयर्स कहते हैं। अब होता क्या, कंपनी अगर जो है कायम की गई, कंपनी कायम करने के बाद अब उसमें जो है रकम मशगूल करना है, कंपनी में रकम मशगूल करना है, तब जो है क्या होगा कि जो है इसको छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता, यूनिट्स में बांट दिया जाता, जिनको शेयर्स या हिस्सेस कहते हैं। चूंकि अराकीन कंपनी के हिस्से खरीदते हुए कंपनी में रकम मशगूल करते हैं, इसलिए इन्हें शेयरहोल्डर्स कहते हैं। यानी कि जो कंपनी में जो पैसे लगाते, जो लोग जो इसमें रकम मशगूल करते, पैसे लगाते और जो है पैसे लगाकर जो है हिस्सेदार बनते, यानी शेयरहोल्डर्स कहलाते। और कंपनी के सरमाए को हिस्सा सरमाया ने शेयर कैपिटल कहते हैं। जो कंपनी में जो मशगूल किया गया सरमाया है लोगों की जानिब से, उन मशगूल किए गए सरमाए को जो है शेयर कैपिटल कहते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग लोगों की तारीफ हम देखेंगे। सबसे पहले जो है एलएच हनी ने कंपनी की तारीफ इस तरीके से की। एक मुश्तरका सरमाया कंपनी नफे के लिए अफराद की एक रजाकाराना अंजुमन है, जो हिस्सेस की मुंतकिली के तहत मुनक़सिम रकम सरमाया रखती है। इनकी मिल्कियत रुकनियत के लिए शर्त है। तो यहाँ पर अलहशानी की तारीफ यूं बयान की गई कि एक मुश्तरका कंपनी जिसमें जो है कुछ लोग जो है मिलकर, कुछ चंद अफराद मिलकर जो है एक रजाकाराना अंजुमन कायम करते और मुनाफे की तकसीम कर लेते और सरमाया लगाते, और उनको जो है शर्त क्या है कि उनमें जो है मिल्कियत में रुकनियत की शर्त है। कंपनी कायम करने के लिए मिल्कियत की रुकनियत की शर्त है। नेक्स्ट यहाँ पर लॉर्ड जस्टिस लिंडले के जो है मुताबिक यहाँ पर मुश्तरका सरमाया कंपनी अफराद की रजाकाराना अंजुमन है या कसीर अफराद की तंजीम है, जो रकम या रकमी मालियात की कोई मुश्तरका सरमाया में शरीक करते हैं और इसको तिजारत में मशगूल करके इससे होने वाले नफे या नुकसान में हिस्सेदार होते हैं। तो यहाँ पर जस्टिस लिंडले के जो है मुताबिक यहाँ पर एक अफराद की अंजुमन, जैसा कि अलहशानी की भी जो है बात हुई थी, अफराद की अंजुमन, रजाकाराना अंजुमन, कसीर अफराद इसमें जो है शामिल होते और जो है रकम जो कारोबार में मुश्तरका सरमाया के तौर पर जो है लगाते और शरीक होते और जो है तिजारत में जो है मशगूल करते सरमाया और नफा या नुकसान में हिस्सेदार होते। तो ये दूसरी तारीफ हुई। तीसरी जो तारीफ है वो
राष्ट्रीय तौर पर कानून कंपनी 2013 के मुताबिक, कानून कंपनी के जो नया जो कानून है 2013 उसके मुताबिक जो है यहाँ पर कानून में बताया गया, एक कंपनी से मुराद वो तंजीम है जो जिसका क़याम कंपनी कानून 2013 या फिर किसी साबिका कंपनी कानून के तहत अमल में आया। तो यहाँ पर कानूनी कंपनी के जो तारीफ बताएगी उसमें तारीफ ये है कि कंपनी कानून के मुताबिक, यानी कंपनी कानून 2013 के मुताबिक अगर कोई जो है कंपनी कायम की गई हो तो वो कंपनी कहलाएगी। सिंपल सी बात यहाँ पर बदलाएंगे। और इसमें जो है यानी जो व्यवस्था जो एक्ट था, कानून था जो 1956 था, उनमें अमेंडमेंट किया गया, तरमीमात की गई और अमेंडमेंट्स के साथ जो है नया कानून वजूद में आया, कंपनी कानून 2013। कंपनी कानून 2013 के तहत कानून कंपनी 1956 में कई तरमीमात अमेंडमेंट की गई। ये कानून 29 हिस्सों, 470 दफात, 7 जदवल और 95 झेली दफात पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर कंपनी कानून जो 2013 है उसके बारे में बताया गया, तफसील बताई गई कि ये कानून कितने जो हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये 29 हिस्सों पर, 470 दफात पर, 7 जदवल पर और 95 झेली दफात पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट, कानून कंपनी 2013 में ताज़ा तरमीम 2017 में भी की गई। नई जो अब जो अमेंडमेंट आया, नया अमेंडमेंट आया, उसमें 2017 में अमेंडमेंट आया। कानून कंपनी के 2013 के बाद फिर 2017 में भी अमेंडमेंट आया और नए सिरे से गुंजाइश फराहम की गई ताकि हिंदुस्तान में बेहतर इंतजाम के साथ सरमायाकारों का मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए कारोबार को मुस्तहकम करने में आसानी हो। तो यहाँ तक जो है इसकी तारीफ बयान की गई। तारीफ में एल-हसानी की तारीफ, जस्टिस भिंडे की तारीफ और कंपनी कानून 2013 के मुताबिक तारीफ, जो 3 तारीफें बताई गई जो कि जो है बहुत अहम है। कंपनी की जब भी आपको जो है कंपनी की तारीफ के बारे में बयान करना होगा तो इन तारीफों को बयान कर सकते हैं। आगे जो है नया जो है टॉपिक है, इसकी जो है खुसूसियात। अब तक यहाँ पर तारीफ देखे थे, हम डेफिनेशंस देखे थे, जो है इंट्रोडक्शन देखे थे। अब जो है इसकी खुसूसियात देखेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे, यानी कि कंपनी की खुसूसियात, कंपनी के फीचर्स। कंपनी जो कानून है उसके तहत जो इसके खुसूसियात भी बताए जाते हैं। तो मुंदरजेल जो है खुसूसियात है जो कंपनी के खुसूसियात के तौर पर बतलाए गए। पॉइंट वाइज है। नंबर 1, कानून के जरिए तश्कील शुदा मसनवी शख्स। यहाँ पर कंपनी एक मसनवी शख्स है जिसका क़याम कानून के जरिए से अमल में आता है और जिसका वजूद सिर्फ कानून के नज़र में होता है। ये गैर बसदी और गैर लमसी कानूनी वजूद होती है जिसका ना कोई जिस्म ना कोई रूह। कंपनी को मसनवी शख्स कहते हैं। मसनवी शख्स हो मतलब कि जो है जिस्म और रूह वाला शख्स नहीं, बल्कि जो है एक मसनवी शख्स है जो कि गैर बसरी है, नहीं नजर आने वाला है, गैर लमसी है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, गैर लमसी और गैर बसरी है। तो जिसको छू नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, लेकिन जो है ये एक मसनवी शख्स की हैसियत रखता है। कंपनी एक मसनवी शख्स की हैसियत रखती है जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ना उसका जिस्म है ना उसकी रूह। नंबर 2, अलहदा कानूनी वजूद।
कंपनी का एक मुनफरिद वजूद होता है और ये इसको वजूद बख्शने के अराकीन से आज़ाद होती है। दूसरे अल्फाज में कंपनी अपने अराकीन से बिल्कुल अलहदा खानी वजूद रखती है। ये अपने नाम से माहिदा कर सकती है, खरीद फरोख्त कर सकती है और लोगों को मुलाजमत पर रख सकती है और कोई भी कारोबारी सरगर्मी अंजाम दे सकती है। तो यहाँ पर ये बात बताई गई कि कंपनी का जो खानी वजूद है वो जो है अलहदा है, सबसे इंडिविजुअल लोगों से, अराकीन से एकदम आज़ाद है। वो किसी से भी जो है अपने कंपनी के नाम के साथ माहिदा कर सकती है, खरीद फरोख्त कर सकती है, लोगों को मुनासिबत कर रख सकती है और तमाम कारोबारी सरगर्मी अंजाम दे सकती है। थर्ड पॉइंट है तश्कील। उमूमन कंपनी की तश्कील या कायम करने वाले अराकीन, जिनको बानियान प्रोमोटर्स भी कहते हैं, इनकी पहल से कंपनी शुरू होती है और कंपनी कई दस्तावेजात की तैयारी के बाद वजूद में आती है। कंपनी को अपनी सरगर्मियां शुरू करने से पहले कई कानूनी ज़ाब्तों की तकमील करना होता है। कंपनी कानून 2013 के तहत रजिस्ट्रेशन या शमूलियत के बाद किसी कंपनी को वजूद हासिल होता है। मतलब ये कि जो है कंपनी जब कायम की जाती, तश्कील दी जाती, तो उनके जो प्रमोटर्स होते, जो उसके उनके जो बानियान होते, उनको जो है जो बानी होते उनको जो है पहल करनी होती, शुरुआत करनी होती और कई दस्तावेजात, कई मुख्तलिफ दस्तावेजात जो है तैयारी करना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, प्रॉस्पेक्टस है या दीगर और भी जो है मुख्तलिफ जो है दस्तावेजात है, इनको तैयार करना पड़ता। कंपनी जो है के मुख्तलिफ कानूनी ज़ाब्तों को तकमील करना पड़ता और उसको कानून के तहत, कानूनी कंपनी 2013 के तहत रजिस्ट्रेशन करना पड़ता। दस्तखत के मुतबादिल के तौर पर मुश्तरका मोहर। चूंकि कंपनी का कोई फितरी वजूद नहीं होता, इसलिए वो किसी दस्तावेजात पर दस्तखत नहीं कर सकती। लिहाजा इसकी दस्तखत की जगह इसके नाम से कुंदा की गई मुश्तरका मोहर, सील इस्तेमाल की जाती है। कंपनी के मुश्तरका मोहर और अलहदा अहदेदार की दस्तखत वाली दस्तावेजात के ताल्लुक से कंपनी जिम्मेदार होती है। उमूमन कंपनी के सेक्रेटरी को इख्तियार दिया जाता है कि वो मोहर को अपने महफूज तहवील में रखे। यहाँ पर एक मुश्तरका मोहर के बारे में, स्टाम्प के सील के बारे में बताया जा रहा। कंपनी की एक सील होती, कंपनी का एक स्टाम्प होता, जिसके तहत जो है कंपनी की जाती। कंपनी की जो है एक मुश्तरका जो है एक सील होती, एक स्टाम्प होता, एक सील होता, जिसको स्टाम्प को, सील को जो है किसी भी दस्तावेज के तौर पर जो है दस्तखत के तौर पर जो है इस्तेमाल करते। और ये जो सील है वो सील जो है कंपनी के सेक्रेटरी के पास मौजूद होती। दायमी वजूद। दायमी से मुराद मुस्तकिल, कंटिन्यू, जैसा कि दायमी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, उसी जो है दायमी वजूद, हमेशा का वजूद, यानी कि मुस्तकिल वजूद। तन्हा मिल्कियती कारोबार और शराकतदारी से जुदागाना तौर पर कंपनी का दायमी वजूद होता है। एक मरतबा कंपनी की तश्कील हो जाने के बाद इसका कानूनी तौर पर तहरीक तक लामहदूद मुद्दत के लिए कंपनी अपनी सरगर्मियां जारी रख सकती है। दूसरे अल्फाज में कंपनी का दायमी वजूद होता है। अराकीन की मौत, पागलपन, दस्तबरदारी या दिवालिया होने का कंपनी के वजूद पर कोई असर नहीं पड़ता। कंपनी का वजूद इसके अराकीन की तादाद में तब्दीली से बेनियाज कायम रहता है। यहाँ पर कंपनी दायमी तौर पर कायम रहती, किसी कभी मौत हो जाने, पागल हो जाने, दस्तबरदारी जो है सबूदोश हो जाने या जो है दिवालिया हो जाने से इसका कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ता। अराकीन की महदूद जिम्मेदारी। कंपनी के रुकन की जिम्मेदारी इस मिल्कियत में मौजूद हिस्से के रकम की हद तक ही रहती है। वो अपनी जानिब से दी गई जमानत या अपनी मिल्कियत में मौजूद हिस्से तक जिम्मेदार होता है। मिसाल के तौर पे ऋषिक एक हिस्से यानी शेयर का मालिक है, जिसकी
मालियत 10 रुपये है और इसका हिस्से 7 रुपये अदा कर चुका है, तब इसकी जिम्मेदारी सिर्फ बाकी 3 रुपये तक की मौजूद रहेगी। इससे ज़्यादा कंपनी किसी भी खर्च या नुकसान की अदायगी की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, जितने पैसे शेयर्स में लगाए उतने ही पैसे को जिम्मेदार, अलग से घर से ले आके पैसे देने की जरूरत नहीं होती, नहीं पड़ती, तो लिहाजा महदूद जिम्मेदारी होती है। हिस्सेस की मुंतखबी, कंपनी अवामी कंपनी की सूरत में जो है कंपनी किसी को भी जो है अपने हिस्से फरोख्त कर सकती है, किसी के पास से भी खरीद सकती है। रुकनी है यहाँ पर मुश्तरक सरमाया कंपनी की सूरत में जो है खान की कंपनी है तो कम से कम 2 और ज़्यादा जो है 50, और महदूद कंपनी यानी अवामी महदूद कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो कम से कम 7 और ज़्यादा अनलिमिटेड। जमहूरी इंतजाम, कंपनी के सरमाया मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ अफराद हिस्सेदार होते हैं, तो लिहाजा इनके लिए कंपनी के रोज़मर्रा इंतजाम में हिस्सा लेना मुमकिन है। वो कंपनी की आम पॉलिसियों को तय करने में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन कंपनी के रोज़मर्रा के मामला के अराकीन इंतजामी अराकीन की जानिब से मुंतखब नुमाइंदों को चलाए जाते हैं, जिनको निज़मा डायरेक्टर्स कहा जाता है। कंपनी शेयर होल्डर्स को चलाने की जरूरत नहीं है, कंपनी के डायरेक्टर्स जो है कंपनी को चला सकते हैं। कंपनी जो है शेयर होल्डर्स चलाने की या ओनर्स चलाने की, पैसे लगाने वाले चलाने की जिम्मेदार नहीं है। आईनी क़वायद, कंपनी को आईनी क़वायद की तकमील करनी पड़ती है। कंपनी खान के मुताबिक चलाई जाती है और इस ऐसे आईनी गुंजाइशों के तहत इसे जो है काम करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे जो है कंपनी को हुकूमत के पास से किसी किस्म से जो है तफसीलात या रिटर्न दाखिल करना हो तो कंपनी के खातों को चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए से आइड करवाना जरूरी होगा। लास्ट, कानून नज़म, कंपनी कानून 2013 के मुताबिक अवामी कंपनियों में बाज़ मखसूस कंपनियों के मजलिस निज़मा यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम एक खातून जो है नाज़िम रहना जरूरी है, यानी कि लेडी खातून नाज़िम रहना जरूरी है। तो ये जो है तमाम क्या बोले उसको जो है खसूसियात देखे, खसूसियात जो है यहाँ पर तमाम तफसीलात जो है तफसील से जो है खसूसियात को देखें। तो आगे के क्लास में जो है हम उसको तफसील से जो है देखेंगे कि जो है आगे की क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि जो है किस तरीके से जो है कंपनी की दर्जबंदी की जाती है। आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करता हूँ, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।